نبی کی عزت پہ پیرا بندہ وہ دے کہ جو مولوی ہے یا وہ علم و دین کی کون سی داڑھی تھی، علم و دین کون سی پگ باندھتا تھا جی؟ جماعت علی شاہ نے قدم چومے یا کہ نہیں چومے؟ اقبال نے جنازہ پڑھا، اقبال نے پھر آگے بڑھ کے وکالت کیا کہ نہیں کی؟ غازی علم و دین شہید علیہ رحمہ 1908 کے اندر پیدا ہوئے، 1923 کے اندر راجپال نے گستاخی کی لاہور کے اندر، اور اس نے معاذ اللہ ایک کتاب لکھی، کتاب بڑی گستاخانہ لفظ ہے اس کا، میں بتانا نہیں چاہتا۔ راجپال نے گستاخی کی لاہور کے اندر، ایک کتاب لکھی، احتجاج بھی بڑے ہوئے، جلسے بھی بڑے ہوئے۔ تو انہوں پتہ قانون تے پھر ماڑے واسطے ہی ہوندا نا جی، تگڑے بندے نو کون ہاتھ پائے تے جن کو پیسہ ہے انہوں کون ہاتھ پا سکتا۔ تو وہ احتجاج بھی ہوئے، جلسے بھی ہوئے، لیکن وہ جو راجپال تھا ہندو وہ پکڑا نہیں گیا، 2 حملے ہوئے پھر بھی وہ بچ گیا۔ اب تیسرا حملہ غازی علم الدین کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک ہندو ہے، ہندو اور بھی بڑے ہیں لیکن گستاخ کا حکم اور ہے، کافر کا حکم اور ہے۔ دیکھو نا اتنے کنے عیسائی لگے پھرتے ہیں، کسی نے کسی نے کچھ مارے ہیں، کدی تشدد کیتا نہیں، بلکہ ادب نہ پیش آندے ہیں۔ کیوں؟ اپنے دین پہ ہے، جب اللہ انہیں توفیق اسلام دے گا قبول کر لیں گے، لیکن جب وہ ہمارے نبی کے بعد خلاف کوئی بات کریں گے پھر ہم سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو علم و دین کو پتہ لگا، تو رائے محمد کمال رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ناموس رسالت کے 7 شہید۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ علم الدین گھر آیا، پہلے وہ مسجد وزیر خان گیا اپنے دوست کے ساتھ، عبد الرشید کے ساتھ، ادھر پتہ چلا تقریر ہو رہی ہے ناموس رسالت کے اوپر، نبی کی عزت پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک راجپال نام گستاخ ہے، اس نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے، تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، خون کھولا۔ حلالی ماں حلالی بیٹے ہوں تو پھر اندر سے خون بولتا ہے، حلالیوں کی کوئی سندے نہیں ہوتی، حلالی اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ گھر آیا، اپنے باپ کو پوچھا، ابا جی جو میرے نبی کی شان میں 21 سال عمر تھی، میرے سے کم، میں تو 23.5 سال کا، 21 سال کا نوجوان علم الدین، ابا جی کو پوچھا، ابا جی اسی ترخان ہونے ہاں، لیکن یہ تو دسو جڑا نبی دی گستاخی کرے وہ دے واسطے کی حکم ہے؟ آکھیا انہوں زندہ رہن دا کوئی حق نہیں، آکھیا تے جڑا انہوں قتل کر دیتے انہوں، تے انہاں دے والد صاحب کہنے لگے کہ ہن تے گوریاں دا قانون ہے، ادوں چونکہ انگریزاں دی حکومت سی، آکھیا جی ہن تے گوریاں دا قانون ہے تے انہاں چھڈنا نہیں، انہاں بھی انہوں تختہ ادار تے لٹکا دینا ہے۔ علم الدین جوش میں سو گیا۔ کتاب کے اندر میں پڑھ کے آیا ہوں کہ علم الدین رات کو سویا تو ایک بزرگ خواب کے اندر آئے اور آگے کہا، علم الدین تو سو رہا ہے، تیرے علاقے میں گستاخ دم دما کے پھر رہا ہے، تو جا اس گستاخ کا کام تمام کر۔ اس دور میں علم الدین اور ساتھ اس کا ایک دوست تھا عبد الرشید، جسے علم الدین ادب سے سیدھا سیدھا کہتا تھا۔ باٹی گیٹ آج بھی لاہور میں موجود ہے، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی اگلے دن، کہا یار عبد الرشید ایک خواب آیا ہے۔ عبد الرشید کہنے لگا کون سا؟ کہا خواب یہ ہے کہ ایک بزرگ آئے ہیں، کہا گستاخ پھر رہا ہے، تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے، جا کے کام تمام کر۔ تو عبد الرشید جو شیدہ نام کے مشہور تھا وہ بھی کہنے لگا مینوں بھی یہ خواب آیا ہے، مینوں بھی یہی خواب آیا ہے۔ دوویں دوستاں چ نا اج کل تے یار پیسیاں تو پہ لڑتے ہیں، کھیلاں تو لڑتے ہیں، ان دونوں دوستوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ وہ علم الدین کہے میں راجپال کو واصل جہنم کروں گا، نبی کی عزت پہ میں اپنی جان نثار کروں گا۔ عبد الرشید کہ نہیں میں کرنی ہے۔ دونوں نے ایسا کیا، کہتے چلو خواب تینوں بھی آیا تے مینوں بھی آیا، حجت تیرے کول بھی ہے تے میرے کول بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو، دونوں قرعہ ڈال لیتے۔ قرعہ ڈالا، 3 دفعہ قرعہ علم الدین کے نام نکل آیا۔ عبد الرشید رونے لگ پڑا اور گلے مل کے کہا ہن تیری ڈیوٹی پکی ہے، ہن کام تو ہی تمام کرے۔ علم الدین گھر آیا اور بالکل سادہ سا بندہ تھا، تھوڑا سا قرآن پڑھا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہ ہمارا امام ہو جاتا ہے، جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہ ہمارا امام ہو جاتا ہے۔ علم الدین گھر آیا، اپنی ماں کو کہا مجھے آج میٹھے چاول تو پکا کے دو۔
मीठे चावल खाए और अपने बाप के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू की। काटन का लट्ठे का सूट पहना, ऊपर कुर्ता पहना, नीचे शलवार पहनी, पग बांधी। अपनी भाभी से, पूरा किस्सा ऐसे ही लिखा हुआ है, अपनी भाभी से 1 रुपया लिया, उसका एक चाकू लिया और राजपाल को कत्ल करने चला गया। जब गया तो दुकान में, राजपाल की दुकान थी, मकतबा था, उसमें मौजूद था। उसने हमला किया, पहले हमले में उसे वासले जहन्नम कर दिया। राजपाल के 2-4 दोस्त साथी काम करते थे उसके साथ, उन्होंने शोर डाल दिया, राजपाल को कत्ल कर दिया एक बंदे ने। तो इल्मुद्दीन जब दुकान से बाहर निकला तो दोनों हाथ बुलंद कर दी, कहा मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने नबी से वफा की है, मैं अपने नबी से वफा की है, मैं भागूंगा नहीं। मुकदमा हो गया। बातें बड़ी होती हैं, इंतजामिया कहती है ये 2 बजे खिला रहा करो, मुहब्बत नहीं ना, को थोड़ा जा साढ़े वास्ते लिखिया भी करो। तो बहरहाल इल्मुद्दीन कहने लगा, उसने अपना वासले जहन्नम कर दिया उसे। जब वासले जहन्नम किया तो मुकदमा हो गया, सज़ा हो गई, फांसी की सज़ा हो गई। वो कोर्ट का दर्जा होता है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी निज़ाम चलता रहा। आखिरकार इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ने के लिए डॉक्टर इकबाल ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बुलाया और उसे बुलाकर कहा कि ये मामला है, तुमने मुकदमा लड़ना है। कहा ठीक है जी, ये मामला है, इस तरह मामला। बहरहाल वो जो इल्मुद्दीन मियाँ वाली जेल के अंदर बंद था, मुकदमा चलता रहा, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ों का कानून था तो बात तो उनकी चलनी थी। उन्होंने अपनी फांसी की सज़ा इल्मुद्दीन की बरकरार रखी। एक दिन ऐसा आया कि इल्मुद्दीन का जो चौकीदार था ना, सुबह आई तो देखा कि इल्मुद्दीन आज बड़ा खुश है और हाथ में तस्बीह पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। और कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि वो इल्मुद्दीन अपनी जेल से भी गायब हो गया था, मौला अली नबी पाक की कचहरी में ले गए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो चौकीदार कहने लगा, इल्मुद्दीन आज बड़े खुश हो, कोई ख़ास बात है? कहा आज इसलिए खुश हूँ कि मैं नबी पाक की कचहरी में गया हुआ था और नबी पाक ने कहा कि इख्तियार है तुझे, अगर तू चाहता है तो तुझे बाकी रखते हैं, रिहा करवा देते हैं। नबी पाक को अल्लाह ने ख़जाने तो दिए ना, इख्तियार तो दिया है, और अगर तू चाहता है तो हमारे पास आ जा। तो पहले तो देखा नहीं था तो इतना तड़प रहा था। जिन्ना नहीं वेखिया हो ते करन गल्लां, ते जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे नहीं, ते जेड़े राज़े हकीकत नूं जानदे ने वो राज़े हकीकत फिर खोल दे नहीं खोल दे। और इल्मुद्दीन ने कहा नहीं हुजूर, अब आपकी बारगाह में जाना है। बहरहाल इल्मुद्दीन को जिस दिन फांसी होनी थी, रात सारी इबादत में गुजारी, सुबह जो है तहज्जुद पढ़ी। इल्मुद्दीन तख्ता-ए-दार की तरफ जा रहा है और मुस्कुराते हुए जा रहा है। दुनिया का एक वाहद कानून है कि जब बंदा फांसी की तरफ जाता होता है, 2 गार्ड इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, बाजुओं से पकड़ा होता है। लेकिन इल्मुद्दीन और गाजी मुमताज़ की सीरत दोनों की मैंने पढ़ी है, तो मैं इन दोनों का ही बता सकता हूँ। ना इल्मुद्दीन को किसी सिपाही ने पकड़ा, ना मुमताज़ कादरी को पकड़ा। दोनों भाग के जा रहे थे, उन्हें पता था यहाँ से फांसी का फंदा अपने गले में डालेंगे, आगे इस्तकबाल के लिए नबियों के इमाम खड़े होंगे। इल्मुद्दीन उसने पूछा, जिसने आपको जो है वो फांसी देनी थी, उसने पूछा कोई ख्वाहिश? उसने कहा 2 नफल पढ़ने हैं। और आखिरी मुलाकात भी बड़ी आला। इल्मुद्दीन ने जब आखिरी मुलाकात होने लगी ना घर वालों की, इल्मुद्दीन ने कहा मेरी मुलाकात के लिए एक शर्त है, मेरा वो रिश्तेदार मुझे मिलने आए जो मुझे आके मिले लेकिन रोए नहीं। जेड़ा आके मेरे को रोएगा मैं उससे मुलाकात नहीं करूंगा। सारे रिश्तों ने कहा ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त कबूल है। भाभियां गई, चाचे गए, मामे गए, जो जो उनके रिश्तेदार मौजूद थे गए। जब माँ मिलने गई, सादी सी माँ, सादा सा पुत्र और वक़्त का इमाम बन गया था, माँ रोने लग पड़ी। माँ का ज़ब्त टूट गया। माँ के तो इल्मुद्दीन ने बड़ी सोहनी बात की। वो बात ही हर माँ के लिए एक समझ ले दलील और हुज्जत है। आज माएँ रोकती हैं जी दीन की तरफ नहीं आना, दाढ़ी ना रखना, बेटा अभी जवानी है, अभी नमाजें पढ़ने की उम्र नहीं। इल्मुद्दीन अपनी माँ को कहने लगा माँ रो ना, जब क़यामत का दिन होगा लोगों की माएँ आएंगी जहां पे ज़ैनब खड़ी होकर कहेगी या रसूल अल्लाह, मैंने ओनो मोहम्मद को आपके दीन पे कुर्बान किया,
जहां पे फातिमा खड़ी होकर कहेगी या रसूल अल्लाह मैंने हसन हुसैन को आपके दीन पे कुर्बान किया, ऐ इल्मुद्दीन की माँ तो भी क़यामत के दिन नबी पाक की बारगाह में खड़े होकर कहना है तो मैं मस्कीन सी हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने आपकी इज्जत पे अपना जवान पुत्र इल्मुद्दीन कुर्बान किया है। कहा बड़ी बड़ी माएँ कहेंगी कोई साथ भी नबी वकास को ले आएगी, कोई हसन हुसैन को ले आएगी, लेकिन ऐ माँ तू क़यामत के दिन मुझे पेश कर देना। तो कहना मैं इल्मुद्दीन को लेके आई। इल्मुद्दीन अलैहि रहमा आपकी शहादत होगी, काफरों ने साजिश की। अब बात तो ख़त्म करनी है जी, अब मैं जो है वाइंड अप तो बात ख़त्म करने पे करूँगा। शहादत होगी। काफरों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से छुपा कर दफन कर दिया, स्लेटें भी नहीं डाली। 2 हफ्ते मियाँ वाली दफन किया। चूँकि अल्लामा इकबाल और इल्मुद्दीन की पहले बात हुई थी, इल्मुद्दीन ने कहा था मेरी तमन्ना ये है ऐ इकबाल, जाना तो मैंने है ही है, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है मुझे दफन लाहौर के मियानी कब्रस्तान में करना। लाहौर जाते हो तो इन बुजुर्गों के पास जाया करो, खाली मीनारे पाकिस्तान पे सेल्फियाँ लेके ना आ जाया करो। इसलिए असल मकसद यही है कि जब बंदा इनके पास बैठेगा तो ताकत और रूहानियत मिलेगी। तो इल्मुद्दीन गाजी अल्लामा इकबाल ने जब पता चला इल्मुद्दीन शहीद हो गए हैं, एहतजाज हुए, रैलियाँ निकली, और फिर अल्लामा इकबाल ने अंग्रेज़ों को अपनी शख्सी ज़मानत दी और ज़मानत दे के कहा, अंग्रेज़ कहते थे हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा, हमने अगर गाजी साहब की मैयत पकड़ा दी तो उन्हें कहा फसाद नहीं होता, तो मुझे इल्मुद्दीन की जो है वो मैयत मुझे दो, मैंने उसकी वसीयत पूरी करनी है। और तारीख गवाह है 2 हफ्ते बाद, कितने दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद इल्मुद्दीन की कब्र को खोला गया तो बीनी बीनी खुशबू आ रही थी, बदन भी सलामत था, तो ऐसे लगता था जैसे अभी किसी ने कफन दे गुस्ल दे के दफनाया होता है। 2 हफ्ते बाद आपकी मैयत मुबारक को नाश के अंदर रखा गया। मियानी कब्रस्तान में जब आपका जनाजा पढ़ाने लगे ना, तो जनाजा पढ़ाने वाला पीर सैयद दीदार अली शाह था और पीछे पीर जमात अली शाह खड़े थे और अल्लामा इकबाल भी खड़े थे। जमात अली शाह साहब ने जब देखा सफ़े खड़ी हैं, बंदे खड़े हैं, फिर जमात अली शाह साहब भी खड़े हैं और साथ अल्लामा इकबाल खड़े हैं और आगे दीदार अली शाह साहब खड़े हैं। दीदार अली शाह साहब बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े जो है वो मुफस्सिर थे, सारी जिंदगी कुरान हदीस उन्होंने पढ़ाया। जब जनाजा पढ़ाने के लिए सबों की तरफ नजर दौड़ाई तो दीदार अली शाह साहब बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने उठाया, कहा दीदार अली शाह आज क्या हुआ, क्या तू घबरा गया है जनाजा दे के? कहा नहीं, सारी जिंदगी कुरान हदीस पढ़ाया है, कभी ज़ाहरी आंखों से नबी पाक का दीदार नहीं हुआ। आज एक तरखानों के बेटे ने नबी की इज्जत पे पहरा दिया है, मैं देख रहा हूं इमामुल अंबिया जनाजा पढ़ने आए हुए हैं। तो कहा मैं देख रहा हूं नबियों के इमाम जनाजा पढ़ने आए। कई बंदे इन्हों भी गापी समझ लेंगे, ये मोहब्बत की बातें या ना मानने के तो बंदा अल्लाह रसूल की भी नहीं मानता। तो अल्लामा इकबाल ना जनाजा पढ़ा दिया गया। अल्लामा इकबाल कब्र के अंदर उतरे और उतर कर उन्होंने जो सीना बंद होता है मैयत का, देखा होगा आपने, वो खोला जाता है जब बंदे को कब्र के अंदर उतारा जाता है। तो सीना बंद खोला इकबाल ने और इकबाल ने कान के अंदर इल्मुद्दीन के कहा, ऐ इल्मुद्दीन तूने कहा था मैं मियानी के कब्रस्तान मुझे दफन करना, मैंने तेरी वसीयत पूरी कर दी है। और एक मेरी भी तमन्ना ही, एक मेरी भी ख्वाहिश है, ऐ इल्मुद्दीन एक मेरी भी आरजू है। कहा वो क्या? कहा जब नबी पाक तेरी कब्र के अंदर तशरीफ लाए ना, तो फिर इस इकबाल का सलाम भी पेश कर देना। कहा जब नबी पाक आए, कदर नबीदा एक ही जानन, दुनियादार कमीने कदर नबीदा जानन वाले सोगे विच मदीने। ये पावर थी कि पीर जमात अली शाह कदम चूमे, इकबाल जैसा बंदा कब्र में उतारे, दीदार अली शाह जनाजा पढ़ाए। इकबाल ने फिर यही तो खुलासा लिखा, कहा तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बस ताल्लुक एक ही है कि मोहम्मद से
इन्ना को शेर तो तुहानू याद हो जाना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला नबी से सच्ची वफा की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।